शुरुआत करते हैं पंकज जी। एक न्यूज़ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ 18 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ CBC ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? जी डेफिनेटली सर, और ये काफी सीरियस कंसर्न है, क्योंकि क्या हुआ है कि व्हेन द बोरोइंग वाज वेरी चीप, काफी लोगों ने इसका एडवांटेज लिया था, विच इज वेरी गुड, दे शुड हैव डन दैट। बट प्रॉब्लम ये थी कि दे ओवर एक्सपेंडेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने हद से ज्यादा ज्यादा टाइट होके दे बॉट बिगर हाउसेस, they got more loan that they could afford. This is why we're seeing this right now, क्योंकि time was a very good time, however good times don't last, जैसे वो बोलते हैं ना। तो इसलिए now जिन लोगों ने ओवर एक्सपैंड, ओवर टाइट होके हद से ज्यादा बड़े घर या डेट ली थी, those are the people who will face this issue the most. Like, there are a lot of people जिनके लिए $100-200 भी महीने के काफी is a very big deal for them. I always say कि आप you buy below your means ताकि you're comfortable, you don't lose your sleep over it, आप ताकि कंफर्टेबल लाइफ जिए। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। बट देखा जाए तो सीधा सा असर पड़ेगा रियल एस्टेट मार्केट में इसका, कि अगर मॉर्गेज आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, देन वेरी क्लियरली यू विल हैव टू सेल द हाउस एंड इन्वेंटरी विल इंक्रीज। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हैवी बायर्स मार्केट इन द कमिंग ईयर और टू, क्योंकि सीधा असर इसका ये होगा कि अगर आप अपना घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ इट और आपको बेचना पड़ेगा एंड गो इनटू अ मोर रियलिस्टिक साइज या प्राइस पॉइंट जहां पर आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं। ਜੀ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਉਹ ਬਾਏ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇ ਬੀ ਡਿਟੈਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਜਾਂ ਟਾਊਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? सर, हम काफी, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर काफी डेवलपर्स हैं, काफी प्रोजेक्ट्स हैं लो राइज में। मैं सिर्फ लो राइज की बात कर रहा हूँ, जो टाउन हाउसेज, डिटैच्ड और सेमीज हैं। काफी प्रोजेक्ट्स में देखा है जहां पर अप्रेजल नहीं आई सेटिस्फैक्टरी टू द बैंक। तो फिर क्योंकि वी सीन दिस ओवर एंड ओवर अगेन, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं क्लोजिंग के लिए, दे आर ऑल्सो हैविंग इश्यूज। तो ओवरऑल लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इट वॉज नॉट वेरी फेवरेबल कि आप लो राइज बिल्डर से लें, क्योंकि मार्केट वाज गिविंग यू अ मच बेटर वैल्यू। हाउएवर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो प्रेफर करते हैं, नहीं मैंने सिर्फ बिल्डर से ही लेना है। तो नॉट द वाइजेस्ट डिसीजन इन माय ओपिनियन कि आप महंगा घर लेके सेम स्क्वायर फीट आप बिल्डर से ले रहे हैं, जहां पर कंपैरेटिवली आपको रीसेल मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू कंपैरेटिवली मिल रही थी। हाउएवर टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली सर, मुझे लगता है ये डिटैच्ड टाउन होम्स, सेमीज विल सी अ वेरी गुड वेराइटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लो राइज होम्स जो मार्केट में आएंगे। और I mean at the end of the day market will become a buyer's market because the inventory काफी हद तक बढ़ेगी। जी ठीक है। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਗਰ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋ ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, $1 ਲੱਖ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਸੌਰਵ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਆਪਾਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੋਰਗੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2025 ਦੇ ਐਂਡ 2% ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ 5%। 5% ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 0.5%, 85%, 1% ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ 5.20 ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ -1 ਦੀ ਆਫਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4.20 ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ 4.20 ਤੇ ਵੀ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੋਰਗੇਜ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ? $8,000 ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ 8,000 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਮਕਾਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ, 2 ਮਿਲੀਅਨ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ $1,500 ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, 9,500 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ 9,500 ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $12,000 ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12,000 ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ 9,500 ਬਚੇਗਾ। ਸੋ 12,000 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਐਟਲੀਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ 4,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 5,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, 7,000 ਕਮਾਉਣਾ ਸਰ $19,000 ਕਮਾਉਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ। तो मैं डरा नहीं रहा किसी को, मैं सिर्फ वेरी रियलिस्टिक नंबर सर। वेरी सही कह रहे हैं ना सौरभ जी, रियलिस्टिक है ना जी। सो मतलब जिन्होंने, जैसे आपने सौरभ आपने बिल्कुल सही बोला कि जिन्होंने रिस्क लिया था ना बिना सोचे समझे, जो स्पेकुलेशन में गए थे, जैसे लोग आपके पास पहुंचते हैं, पीके जी आगे पूरा वो रख देते हैं, भाई साहब तुम्हारी रिस्क असेसमेंट करते हैं, तुम ये सह पाओगे कि नहीं सह पाओगे। बिल्कुल। सो ये चीजें करना बहुत, अब जिस तरह की फिगर्स अगर देखी जाए, मैं तो उस दिनों की बातें कर रहा हूँ फिगर्स की जिस दिन तक इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुके होंगे। आज की कैलकुलेशन कर दूं तो होश उड़ जाएंगे। सो आज गुरदीप जी स्कॉटिया बैंक भी कल आई है, अर्निंग्स आई ने, राइट, की किया उन्होंने $1.2 बिलियन उन्होंने साइड से रख दिता है प्रोविजन्स वास्ते। प्रोविजन्स का मतलब बड़ा वधिया वर्ड है प्रोविजन, बट प्रोविजन का मतलब है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਪਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1.26 ਬਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 1.26 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਾਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 1.26 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 99% ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 99% ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 1% ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਭੇੜ ਚਾਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਮਕਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਲਵਾਂ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਹੋने चाहिए। बिल्कुल। और इनफैक्ट हमने मार्केट में चेंज पंकज जी देखा है होते हुए अभी।
द नंबर ऑफ पावर ऑफ सेल्स जो अभी आने लगी हैं, इट इज सब्सटेंशियली हायर जो कुछ महीने पहले हम देख रहे थे। तो इफेक्ट ये होना शुरू हो गया। बल्कि बताओ, मैं तो बात कर रहा था बिकॉज सौरभ जी सिटिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि रियल एस्टेट इतनी बड़ी ब्रोकरेज है इनकी, इतने सारे एजेंट इनके साथ काम करते हैं, सो दे सीइंग दैट। मैं सौरभ जी, मेरी आपसे कोई पहले बात नहीं हुई थी, प्लीज आपने अपने आप बताया ये ਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸੌਰਭ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? जी गिरीश जी। हेलो हेलो नमस्कार जी सबको। जी जी नमस्कार। अच्छा, पहले तो वो अपने टेक्निकल टीम को बता दीजिए कि मूंगा साहब की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, सबरवाल साहब की तो ठीक आ रही है। जी अच्छा, दूसरा सबरवाल साहब से चालू करते हैं कि सब ये जो असाइनमेंट सेल है ये कब से चालू हुआ और इसका रीजन क्या था इसको चालू करने का, इसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? जी सौरभ जी, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है लाइन कट गई उनकी, ऐसी लगता है। जी पंकज जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी कट मेरे ख्याल फिर थोड़े स्टूडियो च ही होएगा, क्योंकि मैं तो चिपक के बैठा हूं फोन नाल। चलिए ठीक है, आ रही है बट कम आ रही है, दैट्स ओके। चलिए मूंगा साहब आपसे ही चालू कर देते हैं जी। ये बताइए कि ये जो यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है जी, ये किसको जो कैपिटल गेन है, जो प्रॉपर्टी है और फलाना कंपनीज छोटी बड़ी ये कितना पुराना है? कितना पुराना है टैक्स? हाँ जी, मुझे लगता है जब वो महारानी लक्ष्मीबाई जब लगी थी ना वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 1857 में, तब का है जी। क्या विचार है जी आपके? ये तो अब मुझे कहना बड़ा मुश्किल है कि कब टैक्स सिस्टम स्टार्ट हुआ इस कंट्री में, क्योंकि मैं उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा। हाँ तो, जी, क्योंकि देखिए आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अभी देखिए वो जो खबर आई थी, ये जो क्या शैम, हाँ जी सुना था आपने, ये शैम वैम कुछ 5th स्टेट में भी रिपोर्ट वो भी आई है, लोग कितना फ्रॉड कर दिया, कितना 63 मिलियन का टैक्स नहीं बेनिफिट ले लिया, ये सब आपने सुना है खबर? कब आई है सर? ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो देख लीजिएगा, ये अपनी CBC की रिपोर्ट है कि ये ना लोगों ने 63 मिलियन ना CRN से ले लिया टैक्स बेनिफिट में ये सब। अच्छा हाँ जी, जो 5th लेकिन उस पे पकड़ लिया गया उनको, राइट? है जी, पकड़ लिया है उनको? नहीं पकड़ा नहीं है, वो बंदा तो वो खुलेआम घूम रहा है, जैसे यहाँ पे क्रिमिनल घूमते हैं ना, कहते हैं कि पकड़ लो हमें, वैसे ही वो बंदा भी खुलेआम घूम रहा है। आप जरा उसकी डिटेल रिपोर्ट पढ़िएगा CBC पे, तो फिर अगले हफ्ते फिर कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब है ना कि ये जो पूरा जो इधर का सिचुएशन है ना, चाहे वो कोई भी टैक्स सिस्टम है और अपना रियल स्टेट जो भी है व्हाटएवर, राइट, क्रिमिनल कोड, ये पूरे को ना रिवैम्प करने का मांगता है। देखिए तो देखिए, ये तो मान के चलिए कि हर सिस्टम में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और रीवैम्प, ये तो हम जैसे आप इंडस्ट्री की बात कर लें, रियल एस्टेट की, कितने टाइम से, और मैं और पीके जी बात करते हैं यहाँ पे, ये हमें कोई सुनता थोड़ी है। लेकिन अगर आज की डेट में अगर सारे बैंक जब मॉर्गेज देते हैं, वो CRA से सिर्फ यही चेक करना शुरू कर दें कि इनकी इनकम क्या है, सारा फ्रॉड ही खत्म हो जाएगा सर। तो ये तो चीजें ऐसी हैं जो अगर हो जाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सारी, मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व यहाँ नहीं होना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड, लाइक दिस रिक्वायर्ड्स ए पॉलिटिकल विल। हाँ जी, ऊपर से हाँ जी, बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जहाँ भी जो भी इसको डील करते हैं, दे नीड टू टेक दिस काइंड ऑफ एक्शंस कि ये चीजें इस तरह से चलनी चाहिए, सारा कुछ स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। आज की डेट में अगर कोई $500 सिर्फ चार्ज करना शुरू कर दे बैंक, जो कि हर कोई हंस के देने को तैयार होगा कि $500 लगेगा, हम इनकम लेंगे ही लेंगे तुमसे 500, तुम अगर मॉर्गेज अप्लाई कर रहे हो तुम्हें $500 देना ही देना है, ये $500 हम CRA को भेज रहे हैं और CRA हमें तुम्हारी इनकम रिपोर्ट देगी। CRA की इनकम देखो आप कितनी होगी, वो और लोग हायर कर सकता है इन चीजों के लिए और मॉर्गेजेस के लिए, और दे सकता है। और आप उनसे कोई पेपर मत मांगो, उनको बोले आपका नाम दे दो, आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर दे दो, हम अपने आप CRA से उठाएंगे, तुम्हारी इनकम क्या है उसके हिसाब से हम आपको अप्रूव कर देंगे। बस नाम दे दो, डेट ऑफ बर्थ लिख के चले जाओ, सोशल नंबर लिख के चले जाओ, बाकी हम आपको कल बताएंगे कि आप कितने के लिए अप्रूव हो। हाँ जी। आप सोचो क्या हो सकता है इस कंट्री में।
नहीं तो ये कौन करेगा जी ये सब काम? ये कौन किसका करेगा? काम है ये? पॉलिटिकल विल चाहिए, वही तो चीज है। मैं इसीलिए कभी कभी बहुत टाइम मैं हमेशा हट जाता हूँ इन चीजों से कि ये कह के कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। सर मैं इकोनॉमी पे रहना चाहता हूँ। जी। वो युद्धवीर जी डिस्कस करें, कुलदीप नहीं मेरा एरिया नहीं है। मैं तो वोट डालने, जब मेरी वोट डालने की बारी आती है, मैं अपना काम करके आ जाता हूँ, क्योंकि मैं उसी को डाल के आता हूँ जो बंदा ठीक लगता है। मैंने कभी आज तक ये नहीं देखा कि वो लिबरल है या कंजर्वेटिव है या एनडीपी है। तो मुझे तो वो चीजें हैं, मुझे ये देखना है कि बंदा बोलता कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है और वो क्या कर सकता है, कुछ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। मुझे किसी बैक बेंचर को कभी वोट देना ही नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अच्छा तो मेरी मोहम्मद साहब thinking ये वो है। प्लीज आप ये टैक्स वाले में गिरीश आप जी? डिटेल रिपोर्ट। हाँ जी ਗਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸੌਰਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਰਵ ਜੀ ਵੈਲਕਮ बैक। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ जी नहीं बस मैं जरा इनको मुगा जी से एक आखिरी क्वेश्चन। मुगा जी थोड़ा आप वो प्लीज वो टैक्स वाले का जरा डिटेल्ड करिएगा, बताइए कैसे घपला हो गया और कैसे घपला हो रहा है, ये घपला कब तक होता रहेगा और ये रुकेगा कब, ये आप बताइएगा अगले हफ्ते। ठीक है, अगले हफ्ते बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी। यहाँ ये वो शैम स्कीम्स को बोलते हैं, कोरोजल स्कीम और व्हाटएवर। मैंने देख लिया है, मैं साथ हाँ जी कर रहा हूँ, ठीक है लेकिन आई वांट टू गो इन डेप्थ। Yes, प्लीज। यस हाँ जी IRIS टेक्नोलॉजी। यस दैट्स राइट। यस that's तो right. मैं वो देख रहा हूँ सारा, लेकिन मेरे को पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन टॉक। हाँ जी कर लेंगे। अच्छा सौरभ जी पहले नमस्कार अगर इनकेस रह गया हो। अच्छा ये बताइए ये जो ये असाइनमेंट क्लॉज है ये सब ये कब से चालू हुआ और इसका बेसिक पर्पस था, किन लोगों के लिए इसका मेन पर्पस इंटेंडेड, व्हाट वाज द पर्पस? फिर बाकी बात करता हूँ मैं। जी बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए असाइनमेंट क्लॉज, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट असाइनमेंट इज। असाइनमेंट क्लॉज होता क्या है? इफ फॉर एनी रीजन ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या व्हाटएवर कोई इंसिडेंट होता है लाइफ में, आप अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी असाइनमेंट क्लोज नहीं कर सकते, तो डेवलपर्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन देते हैं असाइन करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको असाइनमेंट की ऑप्शन नहीं मिलती। वी लव टू वर्क विद डेवलपर्स जो असाइनमेंट की ऑप्शन देते हैं, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं कि यू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नोबडी नोज, दैट्स व्हाट लाइफ इज। असाइनमेंट का पर्पस ये होता है कि यू आर असाइनिंग योर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी to somebody else before taking the keys to the unit before the final closing. तो असाइनमेंट इज फॉर अ रेनी डे, हम हमेशा बोलते हैं असाइनमेंट के भरोसे आप ना खरीदें। जस्ट बिकॉज यू वांट टू बाय डज नॉट मीन यू कैन अफोर्ड दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या यूनिट दैट यू बॉट। असाइनमेंट के भरोसे आप ना लें, क्योंकि अभी अगर आप देख रहे हैं इस तरह की मार्केट में काफी सारे सेलर्स जो आए हुए हैं, असाइनमेंट्स जो आई हुई हैं, वो इसलिए आई हुई हैं क्योंकि दे नेवर इंटेंडेड टू क्लोज एनीवे, और मार्केट ऐसी फ्लिप करी है, द इकोनॉमी हैज गॉन डाउन एंड वी सॉ इंटरेस्ट रेट्स जंप अप एंड सेम पीपल आर स्ट्रगलिंग टू इवन सेल दीज असाइनमेंट। तो इट इज अ वेरी वेरी सीरियस नोट, क्योंकि नॉट ओनली विल दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी डिफॉल्ट में होंगे, मगर उसके ऊपर उनके ऊपर और लीगल लायबिलिटीज भी आ सकती। तो असाइनमेंट के भरोसे इन्वेस्टमेंट करना बहुत गलत है। असाइनमेंट क्लॉज जो होता है वो रेनी डे के लिए ही होता है, फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो, जैसे मैंने कहा। तो दैट इज व्हाट असाइनमेंट इज सर। ਜੀ ਸੌਰਵ ਜੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ बिल्कुल मजाक बनाया हुआ सर। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी सत श्रीकाल सारे ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी भाजी मेरा सौरभ जी ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ डाउनटाउन ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ सेंट्रल टोरांटो ਦੀ मार्केट। सॉरी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। डाउनटाउन में क्या, आप रिपीट कर सकते हैं? आज टोरांटो मार्केट की बात पूछनी है, टोरांटो डाउनटाउन। जी, तो स्टेट ऑफ द मार्केट अगर आप पूछ रहे हैं सर, देखिए डाउनटाउन टोरंटो जो है, इट्स वन ऑफ दोज एरियाज है कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ महंगा जरूर है, और लॉट ऑफ जितने इन्वेस्टर्स हैं शायद उनके लिए इतना अट्रैक्टिव ना रहा हो, क्योंकि आपकी जीटीए की आउटर मार्केट्स जो हैं डाउनटाउन के जो बाहर है, वो आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू देती हैं। बट डाउन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से सारा डाउनटाउन में ही है। लोग बोलते हैं यार मेरे को किचनर जाना है, वाटरलू जाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कॉन्डो में करनी है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी वाटरलू है। मैं उन्हीं लोगों को बोलता हूँ यार अगर आप विलिंग एंड एबल हैं, डाउनटाउन जैसी चीज बढ़िया
डाउनटाउन से बढ़िया चीज कोई नहीं है, क्योंकि मान के चलो अगर वाटरलू में 1 या 2 यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, डाउनटाउन में आपकी 4 यूनिवर्सिटीज हैं, 5 कॉलेजेस हैं, फर्स्ट कैनेडियन प्लेस है, तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली है। भले ही अभी डाउनटाउन इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा, मगर यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद डाउनटाउन सर। डाउनटाउन टोरंटो में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी जॉब्स उधर हैं, और ये कहना कि यार अब तो वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो ही होगा, मोस्ट ऑफ द कंपनीज अब उन्होंने मिनिमम 3 डेज का डाल दिया कि आपने 3 दिन ऑफिस आना ही आना है, एंड ये एक फेज है जो खत्म हो जाएगा और इवेंचुअली you have to go back. You have to go back to work. That's what the intention is for all these multinational companies. So downtown Toronto, you can never go wrong, sir. जी ओके, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने पूछना था भी अगर डाउनटाउन में कोई कॉन्डो बेचना, उसका बेहतर टाइम कब है अब, और अभी मार्केट अभी देखिए, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ताकि मैं अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो फिर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। आई कैन गिव यू माय ओपिनियन। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा शो के बाद 647-864-8844 पे, हम डिस्कस कर लेंगे एंड आई लुक इनटू योर सिचुएशन सर, और मैं आपको सही सलाह दे दूंगा। ओके, ठीक है। जी सर ना नेक्स्ट कॉलर ने अर्शवीर जी वेलकम रेडियो ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? जी, thank you, Guru Pravesh ji. Thank you, and thank you for giving us the time, Pankaj Moga ji and Saurabh sir. पहला तो मेरा हाउसिंग क्वेश्चन है हाउसिंग मार्केट ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, it's a buyer's market. Okay. ਹੁਣ why now nobody talks about supply and demand? Like ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ first it was like house prices are going through the skyrocketing through the roof because demand is, there's so much demand, there's a supply is less, so and so. And now people are willing to shift from bigger house to into smaller place, but which smaller place? Where? When the demand is not being even met. फिर की I'm sure rental market the boost जरूर मिलेगा इधर, rental market boom होएगी थोड़ी, because they can't afford a mortgage payment. And also please do let us know by at the time the on right now is it still better to live on rent or than paying a mortgage? Because ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਵੀ why pay this much rent when I can afford a property and build my equity in the property and so and I'm building a house for my own kids or future, and that's the housing market side scenario which I wanted to discuss about. Now on the other side, like inflation, with the relationship going between the countries, that affects us import our financial Canada's financial market too, right? Like meaning import, like when the relations goes bad between countries, we blame who do we blame? We just blame other countries, or do we blame government? What about us? Aren't we creating that situation, or like especially with the current situations that are going on, like those wars? Yeah, because we were getting import and export and things like that, the labor market, or we need skilled job and so and so. But if we don't keep good relations with other countries, how can we develop countries? That we can't just fix that on our own. We need to keep that good relations. So the financial market or economy of Canada works well too. That's my question. The main question is who we were to blame, the government or the people, us? Like when we reacted negatively towards these war rising situations that are happening, because it impacts us as a Canadian. Like I can't get this, I can't this it, or this has gone expensive. The food prices have gone expensive because we were used to get grain from Ukraine. Yeah, but who created that situation? Us or the government? More of which country did it? Who are the originally to blame for? If that can be answered as well. Thank you so much. Thank you for your time. पंकज जी, would you like to answer या मैं शुरू करूँ? आप बताइए। आप पहले शुरू कर दीजिए, फिर मैं एंड में इनको आंसर दे देता हूँ। जी बिल्कुल सर। सो वेरी गुड क्वेश्चन।
I think almost every Canadian is asking that कि ये क्या हो रहा है इकोनॉमी के साथ और अफोर्डेबिलिटी कहाँ से कहाँ जा रही है. And it's a very valid concern, a very good question. However, it is not easy putting blame on one particular person. I think blame हर तरफ जा रहा है, but at the end of the day, just to be fair, हम ये नहीं कह सकते कि हम इस कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे या उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करते. We have to look at overall interest of everybody. So we didn't tell Putin to go to war with Ukraine. We didn't tell Hamas to carry out those attacks and start the whole cycle that is going on. But something in the world we cannot control as an economy, as a country, as a person. We just have to deal with it. तो blame सर हर तरफ जाता है, हर किसी को जाता है. क्योंकि देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी ही blame लेगा. क्योंकि अगर आप देखो अभी लॉबलर्स का जो केस हुआ था, they are also trying to make, not trying, they are making a profit out by the cost of bread and groceries. तो ये what is the government doing? Because उनको रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आम आदमी अगर ग्रोसरी प्राइस नहीं अफोर्ड कर सकता, then that is a very huge concern. अब आई बात रियल एस्टेट के मामले में, सी क्या होता है ना कि when the money is cheap and the money is extremely cheap actually, तो everybody says यार थोड़ा सा, जैसे मंगा जी ने अभी कहा, बहुत बढ़िया कहा था कि यार थोड़ा सा हम पेट काट लेंगे, आधी रोटी कम खा लेंगे, होता कुछ नहीं है, रोटी उतनी ही खाते हैं या कई बार ज्यादा खा लेते हैं. अंडर स्पेंडिंग कभी नहीं होती, ओवर स्पेंडिंग हमेशा होती है. तो वो बस एक अपने आप को ख्वाब दिखाने वाली बातें होती हैं, सपना दिखाने वाली बातें होती हैं. यार अगर मैं अप्रूव्ड मान के चलो 8 लाख के लिए हूँ, मैं 1 मिलियन का घर तो ले लेता हूँ, अब बाद में देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता. तो आई थिंक ब्लेम गोज टू एवरीबडी कि जो एवरीडे वर्किंग मिडिल क्लास पर्सन है, आपको भी देखना पड़ेगा कि यार मैंने ये इतना बड़ा घर 4 बेडरूम का 5 बेडरूम का क्यों लिया. हम हैं तो सिर्फ 2 लोग और 1 बच्चा या 2 बच्चे. अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम घर तो बड़ा ले लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं बड़ा लेना, बट नोबडी बाइज समथिंग बिलो देयर मीन्स. आप अफोर्ड तो कर सकते हो डिटैच 4 बेडरूम का, मगर डू यू रियली नीड इट? अब हाथी पालने वाली बात हो जाती है कि अगर जैसे आपने इतना बड़ा घर लिया, यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, बट इंटरेस्ट रेट जितने हमने जिस तरह के interest rates देखे हैं, it is next to nothing. It is something we had never seen before. And it was very actually, it was not going to stick around for a long time. और जैसे हम अभी देख रहे हैं कि interest rates record number से increase हुए हैं. तो long term is not something that everybody thinks about. Short term में यार कर लेंगे, हो जाएगा, अभी के लिए let's deal with it right now, but nobody thinks about 5, 6, 7 years down the road. अब जिन लोगों ने last 3-4 साल में घर लिया था, when the interest rates were very low, that is what the whole discussion is about. They are the ones coming back saying, yeah, this is getting too much, this is getting too expensive. Had they been very fair and very, I'm trying to find the right word, had they been very practical with their purchase, ki yaar, do I really need to buy such a big house? We wouldn't have seen such a situation in large numbers. Pankaj ji? जी बिल्कुल. सौरभ जी, जब आप ये बातें बता रहे थे ना, तो मेरा माइंड इधर उधर इतना घूम रहा था कि क्या एग्जांपल्स हैं इसके साथ, कितने सारे एग्जांपल्स दे सकते हो. देखिए, आपने जो बात की ना, बहुत अच्छी बात की. जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हैं हमारी लाइफ में जो चल रहे हैं इस वक्त, जैसे रशिया है, यूक्रेन है, हमास है, ये इजराइल है, इन चीजों को हम नहीं रोक सकते हैं अर्षित जी, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे पॉलिटिकल में आज लाइक जस्टिन ट्रूडो जी या कोई और बाइडन या कुछ, ये किसी को नहीं कह सकते रशिया को या यूक्रेन को. रशिया ने अब लड़ाई कर ली, कितने सारे लोग लगे हुए हैं यूक्रेन के साथ देने के लिए. उधर से हमास के लिए लाइक बहुत सारे लोग इजराइल और हमास के अलग अलग साथ हैं. लेकिन क्या वो हम कुछ रोक पा रहे हैं? नहीं रोक सकते. यस, वी कैन स्टॉप वन थिंग कि लॉबलॉज ब्रेड के प्राइस ना बढ़ाए, वो लॉबी ना चले, वो चीज ना हो, वो हमारी गवर्नमेंट को करना है. वो चीजें हैं जो पॉलिटिकल हैं, वो करनी चाहिए. दूसरी चीज जो सौरभ अभी बात कर रहे थे कि लोगों ने रिस्क लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, उन्होंने शॉर्ट टर्म सोचा है. यस, ये मैं जिंदगी में छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सौरभ जी मैं आपको. मेरे पास जी, आज सारे अकाउंटेंट मेरे से नाराज हो जाएंगे, मैं ऐसी बात बोलने वाला मेरे पास ऑलमोस्ट, अगर RRSP सीजन जब आता है ना, जब RRSP करते हैं सब, मेरे पास अगर 100 लोग आए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 60 लोगों को असेस करके बोलता हूँ कि तुम्हें RRSP की जरूरत नहीं है. वो कह रहे नहीं, हमारे अकाउंटेंट ने बोला टैक्स बचेगा. बिल्कुल बचेगा टैक्स, लेकिन हम कुछ और तरह से प्लानिंग कर सकते हैं. क्योंकि देखिए, एक चीज मान के चलिए, अकाउंटेंट ने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी है,
वो उसको ये मतलब नहीं है कि आप एस्टेट प्लानिंग कैसे होगी, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होगी, कैसे बच्चों को पास करोगे, क्या उस वक्त आपके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्या चलेगा। उनका काम है आपको आज टैक्स बचा के देना, ये उनका काम है। सो वो आज आपको टैक्स बचा के दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की भी जरूरत है, आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको अकाउंटेंट भी चाहिए, आपको फाइनेंशियल प्लानर भी चाहिए। अकाउंटेंट आज अगर आप अकाउंटेंट आपको टैक्स बचा के नहीं देगा तो आप तो 2-3 साल उनके साथ रहोगे, उसके बाद बोलोगे यार ये तो टैक्स ही नहीं बचाता, मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। सीधी सी बात है। सो बेसिकली वो आज इस साल की टैक्स भर रहे हैं ना, पिछले साल का टैक्स भर रहे हैं ना, तो पिछले साल का आज टैक्स भर रहे हैं, तो कैसे टैक्स बचाया जाए वो अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ काम कर रहे हैं। बट एक सीएफपी जो फाइनेंशियल प्लानर है वो कुछ और सोच रहा है वहां बैठ के। वो ये देख रहा है कि मैं दोबारा हो सकता है मैं रेपिटेटिव साउंड करूं, मैं ये सोच रहा हूं कि यार जब तुम्हारे पास ये पेंशन भी चल रही है, तुम्हारे पास अलग से और भी चीजें हैं, तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, तुमने सौरभ जी से 2 घर भी ले रखे हैं जो कि वो भी फ्री हो जाएंगे, उनके जो इनकम आएगी वो कैसे चलेगी। 4 घर हैं आपके पास, एक कमर्शियल प्लाजा है आपके पास, अब आपका बिजनेस चल रहा है उससे भी इनकम आती रहेगी, मैं आरआरएसपी को निकलवाऊंगा कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ बैठ के। तो मेरी थिंकिंग जो है लॉन्गर टर्म थिंकिंग है। मैं ये देख रहा हूँ एज ए फाइनेंशियल प्लानर की एंड में क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम सिक्योर कैसे रह सकते हो, तुम टैक्सेस कैसे बचा सकते हो। सो बेसिकली इसलिए मैं जो आरआरएसपी करने आते हैं 60 से 70% लोगों को मना कर देता हूँ, और मुझे पता है वो उसमें से 20-30% जाके फिर किसी और से खरीद लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं बेचता उनको, क्योंकि मेरे हिसाब से एज ए फाइनेंशियल प्लानर मेरे हिसाब से उनको सूट नहीं कर रही है। सेम चीज है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब रिस्क ले रहे हो, वो रिस्क आपका टाइम होराइजन क्या है, आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो या लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। रिस्क शॉर्ट टर्म तभी लिया जाता है जब आप में कैपेसिटी होती है कि मैं जुआ खेलना चाहता हूं भाई साहब, मैं कैसीनो की टेबल पे बैठना चाहता हूं, देखी जाएगी, मैं रिस्क लेके जा रहा हूं। लेकिन जब आप सोच समझ के रिस्क लेते हैं तो उसको पूरी तरह असेस करके लेते हैं कि कितना मैं लंबा चाहूंगा, कितने में कि मेरी रिस्क कहाँ पे अभी रिस्क है, लेकिन आगे जाते जाते कहाँ पे ये खत्म हो जाएगा रिस्क। ये रिस्क जो आज है वो रिस्क रहेगा ही नहीं आगे जाके। तो ये सारी चीजें हैं, हमें जानने की बहुत जरूरत है। और सौरभ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा जी जी। और एक और बात होती है सर, देखें अगर एंड जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन जो उन्होंने बोला था कि हम कहाँ जाएं, हमें रेंट करना, अभी फिर हम रेंट करना शुरू कर दें या खरीदना, लाइक यू नो शुड बी बाय। तो सीधी सी बात है कि मैं जैसे हमेशा कहता हूं, एंड वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस जो मेरे को भी मिली थी किसी जमाने में, लिव बिलो योर मीन्स। अगर आपका डिटैच्ड होम है, इफ यू कैन अफोर्ड अ डिटैच्ड होम फॉर एग्जांपल, मे बी गो फॉर अ सेमी। अगर आप सेमी अफोर्ड कर सकते हैं तो मे बी गो फॉर अ टाउन हाउस। एटलीस्ट आप उसको प्रॉपर्टी को एंजॉय तो करें, आप घर का माहौल तो खराब ना करें। अगर आई वुड पर्सनली, if I'm willing, and well, not so much willing, but if I'm able, I would definitely buy and pay my mortgage and pay off my premium rather than leasing and put that money in a trash can जो मैं कभी देखूंगा ही नहीं। चाहे वो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा क्यों ना देना पड़े, बट एटलीस्ट मेरी इक्विटी तो बन रही है। तो यू नो वही बात है कि हमें लेना, हर किसी को लेना, डिटैच्ड है, कॉर्नर लॉट है, 100 by 200 लॉट लेना है, बट एट व्हाट कॉस्ट। कितना शॉर्ट टर्म आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, कितना लॉन्ग टर्म अफोर्ड कर सकते हो कंफर्टेबली। ये सोचने वाली बातें होती हैं, ये देखने वाली बातें होती हैं। तो इसीलिए हम बैठ के तसल्ली से बात करना पसंद करते हैं कि इफ यू आर नॉट एबल देन यू आर नॉट एबल। सीधी सी बात है, आप एक स्टेप छोटा लेने हैं। किसी जमाने में मैंने भी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टूडियो कॉन्डो लिया था, क्योंकि दैट्स ऑल आई कुड अफोर्ड। यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, यू हैव टू गो स्लो। ये लंबी रेस होती है सर, ये दिस इज नॉट ये यू नो दैट स्टोरी कछुआ और खरगोश। यू हैव टू, यू ईदर गो फास्ट और यू ईदर गो स्लो। द पॉइंट इज to expand your life as much as possible, as long as possible, rather than playing a short-term game. तो आपने जो अभी एडवाइस दी है ना, वो जो आपको मिली थी, वो हर बंदे ने अपनी लाइफ में देखी है इस कंट्री में आके अपने आप, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया सर। या वो नहीं, उनको एडवाइस की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने अपने आप सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन उन्होंने उससे अपने लेसन नहीं सीखे। क्या मैं बताता हूँ, इस कंट्री में जब आप लैंड करते हो, सारे आप जितने भी हो इमिग्रेंट ही हो, सौरभ को छोड़ के नहीं मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, जो भी आप बोर्न हुए हैं, बट जो
बाहर से आए हैं, और जितने भी रेडियो सुन रहे होंगे मेरे ख्याल 80% के करीब तो इमिग्रेंट्स ही होंगे यहाँ, ठीक है। आप जब लैंड करते हो इस कंट्री में, आपको आते ही क्या सीधा आप घर खरीद लेते हो? पहले दिन आए आप घर खरीद लिया? नहीं, आप किराए पे रहते हो, किराए पे रहते हो, किराए से शुरू होते हो आप, फिर उसके बाद आप छोटा घर खरीदते हो, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा बड़ा खरीदते हो, फिर कहीं तीसरा, मैं सोचता हूँ भी अब लाइफ साइकिल में थर्ड घर होता है जो नॉर्मली हर पर्सन का 50% लोगों की बात कर रहा हूँ, 50% लोगों का थर्ड हाउस होता है जो बड़ा घर बनता है उसके बाद। सो आपने अपनी लाइफ में सीखा है, जो एडवाइस आपको मिली थी सौरभ, इन्होंने सबने सीखा है, बट उन्होंने अपना लेसन नहीं लिया वहां से। जी जी तो होता क्या है कि एवरी स्टेज लाइफ में हर एक स्टेजेस हैं। तो प्रॉब्लम क्या है जो मैं देखना शुरू किया है पिछले कुछ सालों से, कि डायरेक्टली हमको सब कुछ स्किप करके बड़े डिटैच घर में जाना है। अब अफोर्डेबिलिटी कोई बात नहीं, इट मनी इज चीप, क्यों नहीं, बट लॉन्ग टर्म गोल नोबडी थिंक्स अबाउट। कोई देखता नहीं है कि यार इंटरेस्ट रेट 1.2 2.3% तो हमेशा रहने नहीं वाले, मगर जब 5% 6% जैसे अभी हैं तब क्या होगा वो तब देख लेंगे। एंड नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग एट। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यार चलो बेचो। अब प्रॉब्लम ये है कि अब बेच रहे हैं, दिख नहीं रहा, क्योंकि बायर्स आर वेटिंग ऑन साइडलाइंस देखने के लिए कि यार 2024 में क्या होगा। और अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी, इनफैक्ट अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी मंगो जी, इट इज सिटिंग ऑन द मार्केट, इट इज नॉट मूविंग। यू वांट टू सी एक्चुअली, देखो मैं अब एक थोड़ा सा इसको, हाँ जी गुरदीप ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज सर ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਤੇ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੌਰਭ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਟਣਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। मैं एक मिनट जी, मैं एक कोशिश और, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੌਰਭ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੈਟਰ, ਮਚ ਬੈਟਰ। ओके ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ 'ਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੱਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? नहीं मतलब मैं डिटैच की गल कर रहा, ਨਹੀਂ ਡਿਟੈਚ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं वो तो जिन्ना मर्जी ਵੱਡਾ जितनी मर्जी कैपेसिटी होवे, मतलब मैं डिटैच की गल कर रहा ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ बस ऐस घर तो बाद ਅਸੀਂ नहीं खरीदना। ਉਹ वाली सिचुएशन जो नॉर्मली तीजे 50% लोग, मैं कह रहा 50% लोग हो सकता है उस तो बाद बदलते रहते हो, बट 50% लोग तीजे घर 'ਚ ਜਾ ਕੇ नॉर्मली सैटल हो ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਯੁੱਧ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 4 बेडरूम वाला घर हैगा तो वो बड़ा ही है, समझ लो बस। लेकिन सर जरूरी नहीं कि 4 बेडरूम का घर बड़ा ही हो। 4 बेडरूम आप हमें स्क्वायर फीट के हिसाब से देखते हैं। मैंने पर्सनली मान के चलो 1200 स्क्वायर फीट का टाउन हाउस, उसमें भी 4 बेडरूम देखे हैं। वो साइज कितना बड़ा कितना छोटा हो जाता है वो देखने वाली बात होती है। मान के चलो 1200 स्क्वायर फीट के टाउन हाउस में भी कई बार 4 बेडरूम होते हैं, 1500 से 2000 स्क्वायर फीट में भी 4 बेडरूम होते हैं, और 5000 स्क्वायर फीट में भी 4 बेडरूम होते हैं। वो हमें देखना पड़ता है कितना ज्यादा स्क्वायर फीट का घर है, ओवरऑल लिविंग स्पेस कितनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो बाकी मेरा ये है भी अपना एक कॉलर पहले भी वो CRS लिंक की बात कर रहे थे, राइट? तो उसमें मोंगा साहब मैनू आ लगता भी वो ये हुण ऑलरेडी मार्केट काफी हिलचुल हो रही है, राइट? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਐਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ CRA ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਹ ਡਿਲੇ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 18 ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ CRA ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੌਨ ਬਟਲਰ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬਈ ਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਵੀ $8 'ਚ ਟੀ-ਕੋਟਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਲੌਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2,40,000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ 2,40,000 ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ फॉर द ग्रेटर गुड। नहीं सर, बल्कि बैलेंस्ड मार्केट अगले साल आने वाली है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये सारे स्पेक्युलेटर्स जितने भी हैं जिन्होंने 8 अभी मैं क्या बोलूं आपको, हफ्ते में 1-2 बार मेरे को लोगों का फोन आता है, यार हमने 8 लाख का कॉन्डो बुक कराया था किसी से, आपकी इनकम कितनी है? मेरी इनकम 20,000 है। मैंने बोला आपने क्यों खरीदा जब आपको खुद ही पता था आपकी 20,000 इनकम है, क्योंकि हमें बोला गया था कि यार असाइनमेंट के थ्रू भेज देंगे। अब ये भी तो प्रॉब्लम है, ये दिस इज नॉट जस्ट रियल्टर्स फॉल्ट। आप आम आदमी भी तो कॉमन सेंस कुछ हद तक कर सकता है ना कि यार व्हाट इफ द मार्केट फ्लिप्स, जो अभी हुई है। अब इतने सारे स्पेक्युलेटर्स निकलेंगे, सॉरी टू से, विच इज इन फैक्ट इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, इट गुड फॉर द रियल एस्टेट मार्केट। जो आम अच्छे से अच्छा बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, चाहे उसकी इनकम 1-1.5 लाख क्यों ना हो, वो अच्छे से अच्छा बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन स्पेक्युलेटर्स ने पूरी मार्केट खराब करी हुई है। अब बल्कि आई एम वेरी हैप्पी, अगले साल मार्केट में बैलेंस होना है, क्योंकि अगर आप टाइट होके मॉर्गेज दे रहे हो, 100-200 भी अगर आपको चुप रहे हैं, तो यू पुट योरसेल्फ इन दैट प्लेस। किसी ने आपके सिर पे बंदूक तो नहीं रखी थी ना कि अब तुमने घर लेना ही लेना है। नहीं, वो मैं आपसे अग्री करता हूँ 100%। पर सर ये सारा जो ट्रांजैक्शन है ना, ये बहुत इमोशनल ट्रांजैक्शन है। इसमें अब जो भी बंदा देखता है ना, वो ग्रुप में बात हो रही है, कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे बात हो रही है, बिल्कुल सर, करा दिया ये कर, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल पे डिपेंड होना ही होना है। उन्होंने भी जो प्रोफेशनल बोल रहा है उसकी बातों पे यकीन आ ही जाता है बंदे को। वो कह रहा कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो असाइनमेंट में निकाल देंगे। वो अभी ब्लेम हर तरफ जाता है सर, असाइनमेंट भी नहीं बिक रही सर अभी तो। मैं बिल्कुल नहीं बिक रही। अपने रिलेटिव्स में उन्होंने ऐसे ही विश्वास कर लिया, अच्छा भला सारी नॉलेज थी, पर किसी न किसी टाइम पे फोमो के अंदर आके बस तो अभी वो दे आर स्क्रैपिंग मनी फ्रॉम एवरी कॉर्नर टू क्लोज द हाउस। एग्जैक्टली, ब्लेम गोज ऑल ओवर द प्लेस सर। अब मार्केट, अब क्या था, अब मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट इतनी हॉट थी 3-4-5 साल, एवरी जो टिक एंड हैरी स्टार्टेड सेइंग कि यार मैं तो रियल एस्टेट एजेंट बन जाता हूँ। अब ये जिन लोगों ने 2009, 2010, 2012, 2015 की मार्केटें नहीं देखी, उनको क्या पता स्लो मार्केट क्या है। अब फाइनेंशियल क्राइसिस थे जब मैंने स्टार्ट किया था 2010 के आसपास, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, मार्केट मूव ही नहीं कर रही थी। तो जिन लोगों ने वो टाइम देखा ही नहीं, तो अब वो एजेंट बने हुए हैं, अब वो तो घर चलाने के लिए कुछ भी करेंगे, एंड इट इज अ वेरी कड़वा सच मैं बोल रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक आई सेड, ब्लेम गोज ऑल ओवर द प्लेस सर, फ्रॉम सेलिंग साइड एंड बाइंग साइड एज वेल। नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मार्केट में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डेफिनेटली आना बड़ा जरूरी है। पैसे आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर मैं पैसे देख लूँ सर तजिंदर जी, साड़ी जी GDP है ना कैनेडा ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ 0.8%। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ। ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਵਾਰਸ ਆਲਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਹੋਰ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹਲੇ। ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ
ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਜਟਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋਗੇ, ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਸਟ ਏਰੀਆ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਜਾਂ 15 ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਬਜਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੈਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਨਕਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਰਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪੇਪਰ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੌਫੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕਦੇ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਲਿਆਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੈਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਅਰੇ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹਲੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਕ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ पंकज जी प्रॉब्लम पता क्या होती है, मैं इनफैक्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं भी इमिग्रेंट हूँ, आई केम हियर इन माय टीन्स व्हेन वी मूव्ड हियर, मैंने हाई स्कूल भी किया हुआ है, यहाँ से यूनिवर्सिटी भी करी हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, कि हाउ टू हैंडल योर मनी। हमें कोई भी नहीं पढ़ाता। मैं इंडिया में भी पढ़ा हुआ, वहां पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। वो बता तो देते हैं कि ये ऐसी इंडस्ट्री काम करती है, इंजीनियरिंग ऐसी है, ये वो, नोबडी टेल्स यू हाउ टू हैंडल योर मनी। दैट इज द प्रॉब्लम। और खास करके एंड मैंने इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जैसे हम मिलते हैं क्लाइंट्स को, इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैंने देखे होंगे जो आते ही बोलते हैं, यार भैया कॉलेज को तो छोड़ो, गाड़ी लो, उबर करो, उबर चलाओ या उबर ईट्स करो, और सबसे पहले मैंने लेनी है डॉज चैलेंजर या ये सम अदर कार, जॉब है या चैलेंजर, डॉज चार्जर या मतलब मसल कार ले लेनी है। जॉब क्या करनी है, मतलब सी हमारा क्या होता है कि आप भटक जाते हो। व्हाट इज द मेन पर्पस, आप इधर क्यों आए हो? आप पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, बट आप पढ़ने आए भी हो, ये वो भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता। बिल्कुल जैसे फाइनेंशियल, अभी मैं जैसे बात कर रहा था एक्सपेंस की, सौरभ जी आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया बीच पे। देखिए मेरा रूल क्या है, मैं जो मेरे सामने आज मैं सबको बोल रहा हूँ, ये प्लीज अगर आप ये रूल इम्प्लीमेंट कर लोगे अपनी लाइफ में तो ये सारी चीजें छोड़ दोगे। मेरी जिंदगी में रूल है
24 आवर्स रूल। 24 आवर रूल का मतलब ये है, मुझे आज कोई चीज पसंद आ गई है, कहीं मैं खड़े हुए शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं उसको तब नहीं खरीदूंगा, मैं 24 घंटे बाद आऊंगा। और मैं कभी नहीं जाता हूँ वापस वहाँ पे, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे में मुझे ये रियलाइज हो जाएगा। रेयरली होगा कि मैं यार मुझे ये चीज चाहिए, मैं 24 घंटे बाद वापस जाऊंगा, वो चीज उठा के लाऊंगा। बट 99% वो 24 आवर्स के बाद वो आप चीज खरीदने नहीं जाओगे। सो आपने वो पैसा बचा लिया अपने पास, ये एक्सपेंस में आ गया था। ये बहुत ਵਧੀਆ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 99% ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन एंड सर सेम अप्लाइज टू रियल एस्टेट एज वेल। आप बिलीव ना करें, क्योंकि जो सज्जन अभी बोल के गए थे कि यार इमोशनल ट्रांजैक्शन है, दिस इज नॉट एन इमोशनल ट्रांजैक्शन, इट इज अ ट्रांजैक्शन दैट विल डिक्टेट योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स। क्योंकि यहाँ पर हमारे दादाओं परदादाओं की जमीनें तो है नहीं। इमोशनल का क्या है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देयर इज नथिंग इमोशनल हियर। हमें देखना है कि हमें घर हमारी जरूरतों के हिसाब से लेना है। नीड्स एंड वांट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हम वांट्स के ज्यादा तरफ जाते हैं नीड्स से। तो it does not have to be an emotional transaction. It has to be a very practical transaction. और वही बात है, जैसे 24 आवर्स आप सोचो यार मेरे को एक्चुअली 5 बेडरूम चाहिए भी या मुझे फिनिश बेसमेंट चाहिए भी, रियलिस्टिकली नहीं चाहिए। जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा कूड़ा आपके घर में होगा, क्योंकि आप जितनी शर्टें लाते रहोगे कहीं ना कहीं डालते रहोगे। अब इसी फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, अभी मैं बजटिंग पे ही हूँ, थर्ड मुद्दे पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल गोल कैसे सेट किए जाते हैं, मुझे ये देखना होता है कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग। अभी मैं बजटिंग में हूँ, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। मेरे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल क्या है, क्योंकि मैं अपना बजट बना रहा हूँ ना इस वक्त बैठा हुआ। मुझे ये क्रेडिट कार्ड का डेट पे करना है, मेरे पे ये कार का कोई 10,000 चढ़ा हुआ है, इसको पे करना है। मुझे वेकेशन पे जाना है, दिसंबर में मैं इंडिया जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं नहीं वहाँ नहीं जाऊंगा तो मैं मैक्सिको जाके ठंड से दूर जाके मुझे बैठना है। अब उसके लिए भी तो आपको बजटिंग चाहिए ना सर, आपको अभी से जोड़ना शुरू करना है ना, अभी से निकालना शुरू करना है ना उसको। मेरे को घर बाय करना है अगले साल, ठीक है जी, मुझे सौरभ जी से जाके मिलना है। और मुझे सबसे बड़ी जो चीज होती है हमारी फाइनेंशियल की, इमरजेंसी फंड नहीं है मेरे पास, मुझे इमरजेंसी फंड बनाना है। तो ये सारा कुछ आप एक फाइनेंशियल गोल सेट कर रहे हो अपने, जो कि बजटिंग में आते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं छोटा वाला बजट जिसको हम सेट करते हैं, क्रिएटिंग ए बजट जिसको कहते हैं, डेली के जो एक्सपेंडिचर है। मुझे आप अगर लिखना शुरू करो ना, एक और बड़ी मेजर चीज है बजटिंग में, आपको किसी की जरूरत नहीं है जिस दिन आप पेन पेपर उठा के अपनी हर चीज लिखना शुरू कर दोगे कि आज मैंने खर्चा किया है सुबह से शाम तक। इंडिया में मुझे याद है मेरे फादर साहब रोज अपने जेब से वो कुछ अपनी छोटी सी एक पॉकेट से डायरी निकालते थे और उस पर लिखते थे बैठ के कि मैंने आज क्या खर्चा है पूरे दिन। वो अगर आज आप करना शुरू कर दो ना सर कि मैंने $1.5 कॉफी पे खर्चे, $10 मैंने समोसों पे खर्चे, $10 मैंने यहाँ खर्चे, $1 मैंने यहाँ खर्चा, आपको समझ में आ जाएगा आपने कहाँ कहाँ ज्यादा खर्चा है। आज आपको अगले बार आपको सोचेंगे यार ये तो फालतू का खर्चा है, लेकिन जब हम खर्चते हैं हमें समझ नहीं आता। तो ये बहुत चीज है। उसके बाद ये चीज आती है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, उसके साथ ही मिलती जुलती, हम एडजस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग, जो मॉनिटरिंग मैंने बोला उसके बाद हम एडजस्ट करते हैं उस बजट को, कि मॉनिटर करने के बाद मैंने कहाँ कहाँ ऐसी गलतियां की हैं कि उसको एडजस्ट किया जा सकता। सो उसके बाद एडजस्ट करने के बाद हम सेविंग में जाते हैं, क्योंकि हमें दिखना शुरू हो जाता है कि हमारे पास पैसा है। वो ऐसे नहीं बोलता, वो एक बैंक है बहुत बड़ा जो कहता है यू थिंक लाइक, क्या है वो उसकी लाइन, यू आर रिचर देन व्हाट यू थिंक। वो लाइन बड़ी जबरदस्त है एक्चुअली। स्कोशिया बैंक की, हाँ स्कोशिया बैंक। तो आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ आके बैठे तो वाकई आपको बता सकता है वो कहाँ कहाँ आप रिच हो सकते हो। सो वो गलत नहीं है लाइन, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सो आप वहां पे जब आपका बजट किया, आपने मॉनिटरिंग करके उसको एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, उसके बाद आप सेविंग में जाते हो क्योंकि आपके पास पैसा बचना शुरू हो गया। अब पैसा बचना शुरू हो गया तो आपको इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सारी चीजें जो गोल है ये सारे देखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उसकी तरफ अलोकेशन कर पाते हो उन फंड्स को, क्योंकि आपने बचाना शुरू कर दिया है बजट से। सो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली हैं एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं कहूंगा कि 1%, अभी 99% बात नहीं की है, मैं बहुत लंबी बात कर गया हूँ, सिर्फ 1% के लिए बजटिंग,
सिर्फ 1% है। तो आप सोच सकते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। तभी नॉर्मली क्या होता है कि जब मेरे साथ लोग आके बैठते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार अभी तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा तीसरी बार आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, एक झटके में हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। So thank you for giving this time to me, गुरदीप जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, लोगों को समझनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸੌਰਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਰਵ ਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ चाहो वो भी ज़रूर करो सर। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। टुडे वाज अ वेरी गुड डिस्कशन सर। और मेरा नाम सौरभ सबरवाल है फ्रॉम टीम सबरवाल। वी आर रियल एस्टेट ब्रोकर्स, वी बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या न्यू कंस्ट्रक्शन में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो GTA हो, GTA से बाहर हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर मेरा है 647-864-8844, 647-864-8844। वेबसाइट है teamsabarwal.com। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, भले ही मार्केट आज डाउन है, मगर डाउन मार्केट में बहुत बढ़िया टाइम होता है हमेशा इन्वेस्ट करने का। बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास ऑल थ्रू आउट द GTA, जहाँ पर यू ओनली हैव टू पे 5% डाउन एंड नथिंग टिल ऑक्यूपेंसी। मंथली पेमेंट प्लान हैं जहाँ पर आप 3-3 हजार मंथली पेमेंट्स करके यू कैन बाय एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वी हैव ग्रेट प्रोजेक्ट्स जो आपके 2029 में ऑक्यूपेंसी मिल जाए, 2028, 2027 में। मार्केट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट बाय दैट टाइम। बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, अप टू $300,000 इन डिस्काउंट्स हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में। सो एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यू वांट टू डिस्कस, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सौरभ सबरवाल फ्रॉम टीम सबरवाल, 647-864-8844 पे, 647-864-8844। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। पंकज जी, फोन नंबर ते कुछ और ऐड करना सर, वो भी कर जी बिल्कुल। मेरा फोन नंबर 647-285-1007, 647-285-1007। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कुलदीप जी कि किसी तरह की भी फाइनेंशियल प्लानिंग की तुसी गल कर रहे हो, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हाँ, तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो। इंश्योरेंसेज इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत बड़ा पार्ट होंदियां ने। तो अगर तुसी किसी तरह की इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल है, डिसेबिलिटी है, सो प्लीज उनके वास्ते भी। और अगर तुसी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, चाहे RRSP है, चाहे नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो कोई बैंक कोई GIC रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट रखा हुआ है, आजकल वैसे भी इंटरेस्ट रेट बदलने की वजह नाल बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। चाहे तुसी लॉक करना चाह रहे हो या लॉक नहीं करना चाह रहे हो, तुसी ओपन पैसा रखना चाह रहे हो, गुरदीप जी कमाल हो गया है। ओपन पैसा रखना चाह रहे हो, तुसी कल कढ़ सकते हो। सेविंग अकाउंट है 4.5%, इट्स लाइक बिग इंटरेस्ट रेट। अगर तुसी उसका फायदा चकना चाह रहे हो तो उस वास्ते में मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 647-285-1007। थैंक यू वेरी मच गुरदीप जी। बहुत शुक्रिया पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।